بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ یونٹ 2 لیسن 3 وی مسٹ فائنڈ واٹر۔ ہمیں پانی تلاش کرنا چاہیے۔ پانی کیوں تلاش کرنا چاہیے؟ کیونکہ پانی ہر جاندار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایکسرسائز اے، ریڈ دا اسٹوری اینڈ آنسر دیز کوشچنس۔ کہانی پڑھیں اور ان سوالات کے جوابات دیں۔ وائی ڈڈ دا راشد فیملی لیو پاکستان؟ In which country did they finally make their new home? راشد کے خاندان نے پاکستان کیوں چھوڑا؟ انہوں نے آخر کس ملک میں اپنا گھر بنایا؟ ٹھیک ہے، اسٹوری آپ لوگوں نے سنی ہوگی تو جواب دیں مجھے۔ ہم ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں اسٹوری کی، ٹھیک ہے نا، اردو میں، تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے۔ 8 اگست 2085 کی بات ہے، ٹھیک ہے، 2085، ٹھیک ہے۔ مائی گرینڈ مدر گریو اپ ان دا پروونس آف پنجاب۔ میری دادی صوبہ پنجاب میں پلی بڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ شی یوز ٹو شو می فوٹوز آف ہر ہوم وین شی واز اے ینگ گرل ان دا ارلی ایئرس آف دا 21st century۔ وہ مجھے اپنے گھر کی تصاویر دکھایا کرتی تھی 21ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں، جب وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، ٹھیک ہے نا۔ It was so strange to me as everything was once green and water ran along the river beds۔ یہ میرے لیے بہت عجیب تھا کہ پہلے بہت ہریالی تھی اور دریا میں پانی بھی بھرپور تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ پکچر اے میں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ہریالی، یہ درخت ہرے بھرے گھاس ہے اور یہ پانی، ٹھیک ہے نا، یہ دریا کا پانی اور یہ خوبصورت سا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ By 2080, she told me, there was very little water in the Indus River. Every year things were getting worse۔ 2080 تک انہوں نے مجھے بتایا دریائے سندھ میں پانی بہت کم رہ گیا تھا، ہر سال حالات اور چیزیں مزید خراب ہوتی جا رہی تھیں۔ I later understood that during the 21st century, the snow disappeared from the mountain tops. This was because over the past 100 years, the world became warmer. We call this climate change. Most of the glaciers melted, so the rivers dried up in summer۔ میں نے بعد میں یہ سمجھا کہ 21ویں صدی کے دوران پہاڑوں کی چوٹیوں سے برف غائب ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 100 سالوں میں دنیا گرم ہو گئی تھی۔ ہم اسے موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں۔ زیادہ تر گلیشیئرز پگھل گئے اور گرمیوں میں دریا خشک ہو گئے۔ موسمیاتی تبدیلی پہ ہم جو ہے ڈیٹیل میں بات کریں گے، یہ اسٹوری ریڈ کر لیں، اس کے بعد تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے نا، موسمیاتی تبدیلی پہ، ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج۔ Every summer was hotter than the last one. There was not enough grass for the animals and not enough food for the local people either. Every family had the same problems, but worst of all was the shortage of water, so our family had to leave۔ ہر موسم گرما پچھلے موسم گرما سے زیادہ گرم تھا، جانوروں کے لیے زیادہ گھاس نہیں تھی اور نہ ہی مقامی لوگوں کے لیے زیادہ خوراک تھی۔ ہر خاندان کو ایک جیسے مسائل کا سامنا تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ پانی کی قلت، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمارے خاندان کو وہاں سے جانا پڑا، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہمارے خاندان کو وہاں سے جانا پڑا۔ We loaded some things onto our electric jeep and set off to the west across Balochistan۔ Crossing the desert was the worst part of our journey because it was so hot and dusty۔ We crossed Iran and then went up into the mountains of northern Iran۔ There was very little water, even in the hills. We needed to find a well, so Baba sent up a drone into the sky। The first well that we found was dry, so we continued traveling۔ We were getting tired and hungry,
Every morning, Dad sent up a drone to check the road ahead. हमने अपनी इलेक्ट्रिक जीप पर कुछ सामान लादा और मगरिब की जानिब बलूचिस्तान सफर शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के मगरिब में ईरान का बॉर्डर लगता है, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने पंजाब से बलूचिस्तान की तरफ सफर जो है अपना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं आप लोगों को मैप पे शो करती हूँ। ये देखें, ये पंजाब है, ये बलूचिस्तान है, ये ईरान है, ठीक है ना। ये बलूचिस्तान पे ईरान का बॉर्डर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये पंजाब है, पंजाब में है वो, ठीक है ना। पंजाब से वो कहाँ जा रहे हैं, बलूचिस्तान को क्रॉस करते हुए उन्होंने ईरान जाना, ईरान से फिर कहाँ जाएंगे, टर्की जाएंगे, ठीक है। ये पाकिस्तान का नक्शा है। और रिवर इंडस देखें, यहाँ से शुरू हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से। यहाँ चाइना की तरफ से यहाँ से पानी आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से पानी रिवर इंडस का पंजाब से बहता हुआ, सिंध से बहता हुआ अरेबियन सी में मिल जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि रिवर इंडस भी जो है खुश्क हो चुका था, ठीक है। तो पंजाब से वो कहाँ जा रहे थे, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से देन वो कहाँ जाएंगे, ईरान, ईरान से फिर टर्की। अच्छा, फिर वो क्या कह रहे हैं, सहरा को अबूर करना हमारे सफर का सबसे बुरा हिस्सा था, क्योंकि ये बहुत गर्म और गर्द आलूद था, ठीक है। सहरा का मौसम ऐसा ही होता है, रात में ठंडा हो जाता है, दिन में गर्म। तो बड़ी मुश्किल उन्हें हुई उस सफ़र के दौरान। हमने ईरान को अबूर किया और फिर शुमाली ईरान के पहाड़ों पर चढ़ गए, हत्ता कि वहाँ पहाड़ियों पर भी पानी बहुत कम मौजूद था, ठीक है। हमें एक कुएं की तलाश थी, चुनाचे बाबा ने एक ड्रोन आसमान पर भेजा, ठीक है। फिर जो है पहला कुआं हमें जो मिला वो भी खुश्क था, इसलिए हमने सफ़र जारी रखा, ठीक है। हम थक चुके थे, मतलब भूख भी लग रही थी। हर सुबह वालिद आगे की सड़क को चेक करने के लिए ड्रोन भेजते थे, ठीक है। एट सम पॉइंट वी पास्ड इनटू टर्की, वी couldn't recharge our electric jeep anywhere, so we bought 4 camels and 2 donkeys from local villagers and traveled with those instead. Even in the hills, the weather was warm, not cold. आखिरकार हम तुर्की में दाखिल हो गए। हम अपनी इलेक्ट्रिक जीप को कहीं भी चार्ज नहीं कर सके, इसलिए हमने 4 ऊंट और 2 गधे खरीदे और इनके साथ सफर का आगाज किया। हत्ता के पहाड़ियों में भी मौसम सर्द नहीं था बल्कि बहुत गर्म था। One night we heard howls in the distance. Were they wild animals or were they thieves? We were frightened. Baba lit some branches of wood and waved them around. In the distance we could see little red eyes. Wolves, exclaimed Baba. एक रात हमने दूर से चीखें सुनी। क्या वो जंगली जानवर थे या चोर थे? हम खौफजदा थे। बाबा ने लकड़ी की कुछ शाखों को आग लगाई और इन्हें चारों तरफ घुमाया। थोड़ा फासले पर हम सुर्ख आंखें देख सकते थे। भेड़िए, बाबा ने कहा। अब आप लोग देखें पिक्चर ए, यहाँ क्या है, ग्रीनरी है और पानी है, ठीक है। पिक्चर बी, इसमें क्या डिफरेंस है पिक्चर ए और पिक्चर बी में? दरिया खुश्क हो चुका है, ठीक है, और दरख्त कैसे हो गए बताइए। और पिक्चर सी, इसमें क्या है, ये ड्रोन नजर आ रहा है और ये ऊंट नजर आ रहे हैं, 2 ऊंट हैं, ठीक है, 2 गधे हैं, ये कुआं है पानी का और ये ड्रोन है, ठीक है। ड्रोन नजर आ रहा है, ये देखें ये ड्रोन है, ठीक है। और पिक्चर डी देखें, ये ड्रोन है, ठीक है, ये क्या है और ये क्या है। चले पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। A few weeks later, we saw the entrance of a mysterious tunnel in the hillside. चंद हफ्तों बाद हमने पहाड़ी पर एक पुरस्रार सुरंग का दरवाजा देखा, ठीक है ना। ये देखिए,
Aha! exclaimed Baba. Luckily, I had my drone. It helped me find this tunnel. आहा! बाबा ने खुशी से कहा, खुशकिस्मती से मेरे पास मेरा ड्रोन था। इसने इस सुरंग को तलाश करने में मेरी मदद की। ठीक है, ये सुरंग है, ठीक है ना, और ये ड्रोन है। We tied our donkeys and camels to some trees on the hillside, then carefully entered the tunnel. Why are we going down here? I asked. It is not just a tunnel, Baba explained. This, this, is the, this is the entrance to one of many underground cities in this area. पहाड़ी की तरफ कुछ दरख्त थे, ठीक है ना, पहाड़ी की तरफ कुछ दरख्त थे। हमने अपने गधे और ऊंटों को उन दरख्तों से बांध दिया और एहतियात के साथ सुरंग में दाखिल हो गए। हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? मैंने पूछा। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बाबा ने वजाहत की। ये उस इलाके के बहुत से ज़ेर ज़मीन शहरों में से एक का दाखिली रास्ता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। क्वेश्चन ए, व्हाई डिड द राशिद फैमिली लीव पाकिस्तान एंड विच कंट्री डिड दे फाइनली मेक देयर न्यू होम? अब इसका आंसर बताएं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज, ये पिक्चर ए, पिक्चर बी, पिक्चर सी एंड पिक्चर डी, ठीक है ना, ये आप लोगों के पास क्लाइमेट चेंज की एग्जांपल है। ठीक है ना, आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले कैसे ग्रीनरी थी और दरिया में पानी बह रहा था, ठीक है ना, और उसके बाद क्या वो पानी खुश्क हो गया, हरियाली खत्म हो गई, ठीक है। लोग जो है गर्मी की वजह से परेशान है, पानी की किल्लत से शदीद परेशान है, ठीक है, खुराक की कमी है। तो ये क्या हुआ है? ये क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज की एग्जाम्पल है। देखें, ज़मीन हमारे घर की तरह है, ठीक है ना, और हमें इसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। ज़मीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिससे ये मामूल से ज़्यादा गर्म हो रही है। आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर एक कार धूप में खड़ी है और इसकी तमाम खिड़कियां बंद हैं, तो क्या कार के अंदर गर्मी बढ़ती जाएगी? बताएं, सोचें, थिंक अबाउट इट। जाहिर है, जी हाँ, बिल्कुल गर्मी बढ़ेगी। इसी तरह जब हम लोग पेट्रोल, डीजल और गैस वाली अशिया इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये सब एक नुकसान देने वाली गैस छोड़ते हैं, ठीक है ना। जब हम कोयला जलाते हैं या हम जहाज उड़ाते हैं, हवाई जहाज, तो फ्यूल यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। तो फिर इससे क्या होता है कि इन चीज़ों को यूज़ करने से क्या होता है कि फ़िज़ा में एक गैस जाती है, ठीक है ना, ये चीज़ें एक गैस रिलीज़ करती हैं, फ़िज़ा में एक गैस जाती है, वो गैस हमारी दुनिया के गिर्द जमा होती जाती है, ठीक है। जैसे आप लोगों की सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं, अब उनको भी रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से अब हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो दुनिया है, वो गर्म रहने लगी है। गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदर में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जिससे साहिली इलाकों में सैलाब के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। जंगलात में आग लगने के खतरात लाहक हैं। मौसमियाती तब्दीली हर जानदार को मुतासिर कर रही है। मौसमियाती तब्दीली हर जानदार को मुतासिर कर रही है। अब इसके लिए हम सबको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, बताएं। हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन ख्याल करेगा? हमारा फर्ज है। तो फिर आज से कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द लोगों को आगाही दें। इस दुनिया की हिफाजत के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये करें कि जब लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ घर में जो भी है ना आपके यूज़ में ना हो, तो उसे बंद कर दें। जब भी मुमकिन हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, चहलकदमी करें या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। चीज़ों को रीयूज़ करने की आदत डालें, जैसे कि इसके अलावा आपके जो पुराने कपड़े हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, वो आप किसी गरीब को दे दें, उसके काम आ जाएंगे, ठीक है। उनको ज़ाया करने से तो बेहतर है ना कि वो किसी के काम आ जाए। तो इस तरह रीयूज़ करने की, दोबारा इस्तेमाल करने की चीज़ों को आदत डालें, ठीक है ना। और आप लोग मुझे भी जो है ना कमेंट सेक्शन में बताएं रीयूज़ की क्या एग्जांपल्स होंगी। आप लोग अपने रूटीन में देखें कि मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स,
Exercise A is read the story and answer these questions. Why did the Rashid family leave Pakistan? राशिद की फैमिली ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा था? बिकॉज इट वॉज टू हॉट एंड देयर वॉज नो वाटर। ठीक है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी और पानी की किल्लत थी। ठीक है। इन विच कंट्री डिड दे फाइनली मेक देयर न्यू होम? कौन से मुल्क में उन्होंने अपना नया घर बनाया था? यहाँ से वो कहाँ गए थे? यहाँ से वो एक अंडरग्राउंड सिटी में गए थे। तो ये कहाँ पर था? तुर्की में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इन एन अंडरग्राउंड सिटी इन टर्की। क्या आंसर होगा? इन एन अंडरग्राउंड सिटी इन टर्की। ओके। एक्सरसाइज बी इज इन विच पिक्चर ए टू डी? ये पिक्चर्स थी ना, ए पिक्चर, बी पिक्चर, सी पिक्चर एंड डी पिक्चर। ठीक है, अब ये जो पिक्चर्स है ना, 4 पिक्चर्स, ठीक है, इनके बारे में कुछ सवाल हैं, 4 सवाल हैं। ठीक है ना। नंबर 1 इज डिड दे यूज आ ड्रोन टू फाइंड अ वेल? कुआं ढूंढने के लिए क्या उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया था? तो बताएं कौन सी पिक्चर में ये हुआ है? पिक्चर सी में। ठीक है, सी पिक्चर में ड्रोन यूज करके ये कुआं तलाश किया। ठीक है ना। वाज द रिवर इंडस फुल? पिक्चर ए को देखते हैं, देखें पिक्चर ए। ठीक है ना, दरिया सिंध में पानी भरा हुआ था, हरियाली थी हर तरफ। ठीक है। नंबर 3 इज डिड दे फाइंड अ हिडन ओपनिंग इन द हिल साइड? क्या उन्होंने पहाड़ी में कोई छुपा हुआ दरवाजा पाया? पिक्चर डी। ठीक है ना। वॉज देयर वेरी लिटिल फूड एंड वाटर इन द वैली? क्या वादी में खुराक और पानी बहुत कम था? ठीक है ना। पिक्चर बी। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ना, खुश्क साली और कहत साली, पानी की किल्लत भी है और गिजा की किल्लत भी है। ठीक है ना, हरियाली खत्म हो चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है। ठीक है।